یونیکیڈمی میں آج کی ہماری مفرد دوا ہے بیلگری۔ یہ ایک ذائقے دار پھل ہوتا ہے، بہت سخت چھلکوں والا، اس کا شربت بھی بنایا جاتا ہے۔ پہلے مختصر تعارف اور اس کے بعد افعال و خواص۔ انگریزی میں اسے بیل فروٹ کہتے ہیں، لاطینی میں ایگل مارمیلوس۔ افعال و خواص پہ بات کرتے ہیں۔ اس کا نفع خاص ہے، یہ نافع زہیر ہے۔ پیچش کے لیے شربت بیلگری بڑا مشہور ہے، مربع بیلگری استعمال کیا جاتا ہے۔ پیچش کے لیے یہ نفع خاص رکھتی ہے۔ اس کے تازہ حالت میں افعال الگ ہیں اور خشک حالت میں افعال الگ ہیں۔ تازہ حالت میں یہ ملین اثر رکھتی ہے، یہاں پر اس کے معنی جو مشکل الفاظ ہیں وہ دے دیے گئے ہیں۔ خشک حالت میں یہ قابض اثر ہے اور حابس ہے۔ تازہ حالت میں ملین، جبکہ خشک حالت میں قابض۔ یہ مقوی معدہ و ہاضم ہے، ہاضمہ اچھا کرتا ہے، مفرح بھی ہے۔ اس کا شربت کافی فرحت بخش ہوتا ہے۔ اس کے درخت کی چھال جو ہے دافع حمہ ہے، بخار کو کم کرتی ہے۔ اس کی پتیاں جو ہے برگ نافع ذیابیطس ہے، ذیابیطس کے لیے خاص طور سے اس پر ریسرچ ہوئی ہے۔ اس کے مواقع اور ترکیب استعمال دیکھتے ہیں۔ تازہ چونکہ ملین ہے، اس لیے قبض، شکم کی گرانی، پیٹ کی گرانی اور افارا پن تبخیری کیفیت ہو جاتی ہے، اس میں یہ کام آتا ہے۔ بیلگری کا تازہ گودا استعمال کیا جاتا ہے۔ خشک حالت میں یہ قابض اور حابس اثر رہنے کی وجہ سے ہر عمر میں، بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی، ان کے مختلف قسم کے اسہال و زہیر، سنگ رہنی، معدے کی حاد و مزمن بیماری میں، ہر قسم کے جریان خون میں، چاہے کثرت حیض ہو، معدہ و امعاء کی گرمی کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا شربت ان امراض کے لیے ہونے والی جو کمزوری ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے۔ اسے صفوف کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں۔ بیلگری کو سکھا لیا جاتا ہے، اس کا گودا بھی سکھا لیا جاتا ہے اور خشک حالت میں بھی اس کا صفوف پاؤڈر بنا لیتے ہیں۔ اس کا شربت بنایا جاتا ہے، بلکہ کچے پھل کو بھوبل میں ڈال دیتے ہیں، چولہے میں ڈال دیتے ہیں اور اسے بھون لیا جاتا ہے اور پھر اس کا گودا نکالا جاتا ہے۔ یہ گودا بھی کام آتا ہے، قابض و حابس اثر ہوتا ہے۔ کچھ آسان نسخے آپ کے سامنے ہیں، کسی حکیم سے مشورہ ضرور کر لیجئے۔ پہلا نسخہ بتایا گیا ہے کہ مغز بیلگری کا گودا جو ہے وہ اس کو پانی میں اچھی طرح حل کر لیں، چاہیں تو شکر ملا لیں۔ اسہال پیچش کے لیے ایک اچھا شربت تیار ہے۔ دوسرا جو ہے، کچے پھل لے کر اس کو بھوبل میں رکھیں، جب چولہے میں وہ لال ہو جائے، اس کا گودا صبح نہار منہ 25 سے 30 گرام تک کھلائیں۔ چند روز کے استعمال سے مزمن اسہال بھی کم ہو جاتے ہیں۔ کچے پھل کا گودا بھی براہ راست کھا سکتے ہیں، لیکن کچا پھل براہ راست کھانے پہ تھوڑا سا پیٹ پہ گرانی لاتا ہے۔ اس طرح سے، اس ترکیب سے کہ بھوبل میں ڈال کے اسے تیار کر لیا جاتا ہے، پھر کھاتے ہیں۔ خشک بیلگری کا جوشاندہ تیار کیا جاتا ہے، یہ پانی بھی اسہال کو کم کرتا ہے۔ خشک بیلگری جو ہے، خاص طور سے اس کا گودا، یہ مقوی معدہ و ہاضم ہے۔ ذوف معدہ، ذوف امعاء، ذوف ہضم، سوء ہضم، وجع الفواد، ذوف اشتہا، بھوک کی کمی، درد شکم، ریحی، نفخ شکم، تبخیر، ان سارے امراض میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ مربع استعمال کریں یا کچے بیلگری کا دھوپ میں سکھایا ہوا گودا نکال لیں اور اسے استعمال کریں۔ یہ مفرح ہونے کی حیثیت سے نفسیاتی امراض جیسے خفقان، وحشت، کرب اور بے چینی، مالی خولیا جسے میلنکولیا کہا جاتا ہے، جنون، کابوس، ان ساری شکایتوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کابوس ایک ایسی تکلیف ہے جیسے یوں لگتا ہے کہ سوئی ہوئی حالت میں کوئی شخص جو ہے ہماری گردن دبا رہا ہے، کہ اس نفسیاتی کیفیت کو کابوس کہا جاتا ہے۔ تازہ گودا استعمال کریں، شربت بنائیں یا مربع بنا لیں اس کا۔ اس کے درخت کی چھال دافع حمہ ہے، ہر قسم کے بخار، تپے کونا، نوبتی بخار، بلکہ جب باری آنے والی رہتی ہے اس سے پہلے بھی استعمال کر لیا جائے تو باری ٹل جاتی ہے۔ اس کے پتوں کا اور چھال کا جوشاندہ اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا برگ جو ہے، اس کی پتیاں ذیابیطس کے لیے خاص نفع بخش ہیں۔ تازہ پتی کا رس یا اس کا اسارہ، اس کا نچوڑ استعمال کر لیں، یہ ذیابیطس میں کام آتا ہے۔ بیلگری کے استعمال کے عام جو طریقے ہیں وہ یہاں پر 5 طریقے ہیں عام طور سے استعمال کرنے کے۔ رس بنا لیا جاتا ہے، شربت کا آدھا یا 1 کپ دن میں 1 یا 2 بار ہلکا کھانا کھانے کے بعد پانی میں ملا کر پی لیں، خصوصاً اسہال و پیچش کے لیے فائدہ کرتا ہے۔ دوسری ترکیب ہے، صفوف یا پاؤڈر بنا لیتے ہیں، اسے آدھا چمچہ پانی میں ملا کر دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے، گاڑھا شربت بنا لیتے ہیں، 15 سے 20 گرام بیلگری کا گودا لے کر ٹھنڈے پانی میں ملا لیں اور پھر چھان کر اس کے استعمال کریں، گاڑھا گاڑھا۔ یہ معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ اس کا جوشاندہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، 5 گرام بھنے ہوئے بیلگری کا گودا گرم پانی میں ڈالیں اور ہلانے کے بعد اسے پی لیں۔ اس کا مربع بھی تیار کیا جاتا ہے، یہ ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے، ہر ناشتے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دیگر افعال و خواص جو اس کے بتائے گئے بیلگری کے، یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ بیلگری کا گودا اور اس کے پتوں کو خراب قسم کی چربی یعنی بیڈ کولیسٹرول، لو ڈینسٹی لائپوپروٹین وغیرہ کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے لیے بھنا ہوا بیلگری کا گودا استعمال کرتے ہیں، جبتوں کا رس استعمال کیا جاتا ہے۔ حاملہ کی قے کو روکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حاملہ کی قے میں آرام کے لیے بیلگری کا گودا 1 چمچہ ابلے ہوئے چاول کے پانی کے ساتھ لیں یا گڑ کے ساتھ کھلائیں۔ یہ مدمل قروح بھی ہے۔ بیلگری کا گودا جو ہے یہ زخموں کو ٹھیک کرتا ہے۔ بیلگری کا گودا یا خشک بیلگری کا صفوف کا مرہم بنا لیں اور اس مرہم کو زخم پر لگانے سے اندمال تیزی سے ہوتا ہے۔ جلے ہوئے زخم
जख्म पर भी लगा सकते हैं, छालों पर लगा सकते हैं, बल्कि मुनासिब तेल में शामिल भी किया जा सकता है। ये इमराज जिगर के लिए भी नाफे है। बेलगिरी का गूदा या खुश्क बेलगिरी, इसका सफूफ जो है या इसके पत्तों का रस जिगर के अमराज के लिए मुफीद है। बेलगिरी के पौधे के दीगर अज्जा के भी फायदे पाए गए हैं। सिर्फ गूदा ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसका पत्ता भी इस्तेमाल होता है। ये पत्ते हल्के मुलय्यन असर रखते हैं। दमा और खुश्क खांसी के लिए भी मुफीद पाए गए हैं। बेलगिरी के पत्ते का रस या जोशांदा बनाए, ये एलर्जी, बुखार की कैफियत, नक्सीर, नाक से खून आने को फायदा करता है। कुरूह मैदा में भी ये इस्तेमाल बताया गया है कि इससे पेप्टिक अल्सर्स को फायदा हुआ है। पत्तों का जोशांदे से नौबती बुखार उतर जाता है। आंख दुखने पर पत्तों का जिमात फायदा करता है, कीचड़ आना बंद हो जाता है आंख से। रस में थोड़ा काली मिर्च का इजाफा कर लें और इसे पिलाने से कब्ज दूर होता है, बवासीर को फायदा करता है, यरकान की कैफियत भी दूर होती है। बेलगिरी की छाल के जोशांदे में शहद मिलाकर पिलाने से सफरा और बलगम की वजह से होने वाली कै जो है वो बंद हो जाती है। ये एक सफ़े पर सारे अफाल खवास आपके सामने है। मशहूर अफाल खवास भी हैं और जो दीगर अफाल खवास इसके अज्जा में भी पाए गए हैं वो सब यहाँ बयान कर दिए गए हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके मुरक्कबात जो है, मुरब्बा बेलगिरी बहुत मशहूर है, शरबत बेलगिरी, माजून ज़र्ब, दवाए बराए साल और सुफूफ हिंदी बेलगिरी इसमें शामिल किए जाते हैं। इनके हर हिस्से में अलग अलग फाइटोकेमिकल्स हैं। फ्रूट फलों में अलग है, पत्तियों में अलग है, बार छाल में अलग है, इसकी बीजों में अलग है। इन फाइटोकेमिकल्स के बारे में मैं कहूँगा खास तौर से जदीद तलबा के लिए मेरा मशवरा रहेगा कि वो इस पर गौर करें। सिर्फ मिजाज की बुनियाद पर हम इलाज मुआलजे की बजाय इन फाइटोकेमिकल्स पे भी गौर करें। इनके अफाल खवास के बारे में भी जाने। बहुत तफसील से इंटरनेट पे मौजूद है कि मार्मेनॉल जो है वो कैसा असर करता है, किस तरह से असर करता है, प्रालेटिन कैसे करता है, मार्मेलोजिन कैसे करता है। ये सारी चीजें आपको गौर करना चाहिए और इस बुनियाद पे आप नए नए इस्तेमाल मालूम कर सकते हैं। और इन फाइटोकेमिकल्स की मालूमात के जरिए आप बहुत सारी नई उसके क्लिनिकल इफेक्ट आपके सामने आएंगे, जिसे आप कामयाब तरीके से अपने मतलब में इस्तेमाल कर सकते हैं। अफाल खवास की बुनियाद पे जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज बेलगिरी में मिली हैं वो ये सारी चीजें हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हमारे हुक्मा ने बता दिया है। ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी माइक्रोफाइलरी है, एंटी फंगल इफेक्ट आया है इसके अंदर, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, ये मनात को तब्दील करता है, एंटी कैंसर एक्टिविटीज भी पाई गई है, वुंड हीलिंग आपको बताया गया, एनाल्जेसिक इफेक्ट इसका पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है इसमें, एंटी पायरेटिक दाफे हुम्मा इसकी छाल तो है ही है, इसकी पत्तियां भी हैं। एंटी डायबिटिक तो खास तौर से इसका असर इसकी पत्तियों का पाया गया। एंटी डिसलिपिडेमिक यानी खराब चर्बी को भी ये कंट्रोल करता है। डायरिया को कंट्रोल करने की बात बताई गई। एलर्जी को दूर करता है, अल्सर को दूर करता है, वायरल इफेक्ट को कम करता है और ये मेमोरी बूस्टर भी है। मुफर्रे होने के साथ साथ ये मेमोरी बूस्टर भी पाया गया है। बेलगिरी में जो जो खवास पाए गए यहाँ पर एक टेबल के जरिए आपको वाज़ेह किया गया है, लेकिन इस चार्ट को बताने की जरूरत यह है कि आप महसूस कर सकते हैं कि इसमें एंटी कैंसर एक्टिविटीज कितने फीसद पाई जाती है, इसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, मुसफ़िया खून एक्टिविटी कितने फीसद है, और एंटी डायबिटिक एक्टिविटी आप देखेंगे 45% इसकी डायबिटिक एंटी डायबिटिक एक्टिविटी पाई गई है। और इस तरह से जो अक्सर कहा जाता है कि आप एक ही दवा में इतने सारे इस्तेमालात बताते हैं, इतने सारे फवायद बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक दवा जो है सारे अमराज के लिए काम कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बेलगिरी है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी काफी है, एंटी कैंसर एक्टिविटी भी है, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी तो बहुत अच्छी है इसके अंदर। तो हम जो फायदे ज्यादा असरदार होंगे उस दवा में, पहले हम उसका इंतखाब उस मकसद के लिए करेंगे। ये आपके सामने रिसर्च पेपर है इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में। इसके अंदर एगल मार्मेलोस की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताया गई है। अगर आप लिंक देखना चाहे तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। ये एक दूसरा है वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस में है, फाइटोकेमिकल्स एंड फार्माकोलॉजिकल रिव्यू ऑफ माजा। माजा बेलगिरी को कहते हैं, मार्मेलोस, इसकी भी लिंक यहाँ पर आपको दी गई है। जो तफसील से इसको देखना चाहे वो देख सकते हैं। ये एक तीसरा पेपर है फाइटोकेमिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बेल, ये जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड रिसर्च में पाया गया है और इसकी भी लिंक आपको दे दी गई है। बेलगिरी का मिजाज ताजा बेलगिरी सर्द और तर मिजाज का पाया गया है, सर्द दुवम दर्जे में और तर्द सुवम दर्जे में। खुश्क जो है वो सर्द खुश्क है। इसकी मिकदार खुराक सुफूफ 2 से 3 ग्राम इस्तेमाल करें। जो खुश्क किया हुआ साये में खुश्क हुआ बेलगिरी का गूदा जो होता है उसका सुफूफ जो है 2 से 3 ग्राम। शरबत जो है 1 से 2 चमचा यानी 5 से 10 ml आप इस्तेमाल कर सकते। इसकी मुजरत जो है ये मुसद्दद है। मुसद्दद बोले तो ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट पैदा करने वाला, ये मैदे में आंतों में रुकावट पैदा करता है, इसीलिए मुसद्दद कहा गया है कि ये सुद्दे पैदा करता है, इसलिए एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और उसी वजह से ये बवासीर का सबब भी बन जाता है। इसके इस्लाह के लिए नबात सफेद इस्तेमाल करें और अगर बेलगिरी ना मिले तो सुबह से अस्पगोल इस्तेमाल करें। अफार खवास के बाद अब बेलगिरी की कुछ बुनियादी मालूमात और कुदरती माहियत व पहचान के ताल्लुक
ताल्लुक से बेलगरी को अंग्रेजी में बेल फ्रूट या वुड एप्पल कहते हैं, लातीनी में एगल मार्मेलोस, उर्दू में बेलगरी कहा जाता है, फारसी में सेब चोबी, अरबी में सफरजल, तुफाए खशबी, संस्कृत में बिलो, बिलवा, श्रीफल, हिंदी बेल या बेल फल, मराठी में बेल, पंजाबी कश्मीरी में बिल बिलवा, गुजराती में बेली या बेलो, सिंधी काठोड़ी, बंगाली बिलवा और पुश्तू में श्रींग या बेल ही कहा जाता है। इसकी माहियत जानते हैं। असल फल ही इस्तेमाल होता है जो आपको नजर आ रहा है, और बेलगरी दरअसल बेल के दरख्त के फल का मग़ज़ है। इसका जो दरमियानी गूदा होता है यही आमतौर से इस्तेमाल होता है। ये जो दरमियानी गूदा है फल के सख्त छिलकों से अलग करके खुश्क कर लिया जाता है, कभी ताज़ा भी इस्तेमाल किया जाता है। ये अनार के साइज या उससे कुछ बड़ा ताज़ा हालत में सब्ज होता है और कुछ नर्म रहता है, लेकिन पुख्ता होने पर सख्त छिलकों वाला हो जाता है। इतना वजनी होता है कि जो डाल जिसमें लटका रहता है वो लटक जाती है। पके हुए फल का मग़ज़ जर्दी माइल सुर्ख होता है, मजा शीरी, खुशबूदार और लुआबी होता है, थोड़ा सा चिपचिपापन पाया जाता है। ये आप डाल लटकी हुई देख रहे हैं, सब्ज फल है। ये हरा हरा फल ताज़ा फल है, इसको आप धारदार हथियार से काट सकते हैं और जब दरख्त में ये पक जाता है तो इस तरह से जर्दी माइल हो जाता है। यह है आमतौर से मिलने वाला बेल का फल जो आप मार्केट में आपको मिल जाएगा। और ये अंदर गूदा जो है उस सुर्खी माल गूदा लजीज गूदा होता है, शीरी होता है, खुशबूदार। ये सब्ज रंग का बेल फल है जिसे बीच से तराश दिया गया है। फल के अंदर ये गूदा 15 से 20 हिस्सों में बटा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई हिस्से पाए जाते हैं। हर हिस्से में चपटे चपटे 1 सेंटीमीटर लंबे 6 से 10 अदद तुख्म पाए जाते हैं और जिनके अतराफ में मोटे रेशेदार चिपचिपा गूदा मौजूद होता है। यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये बड़ा सा फल था, इसे फोड़ा गया है और ये सारा हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है ये सब गूदा है और इसमें रेशे पाए जाते हैं बहुत सारे, लेकिन आप तुख्म देख सकते हैं ये 1 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। फल दिसंबर के आखिर में तकरीबन 11 महीनों के बाद पुख्ता होता है और इतना सख्त होता है कि हथौड़ी या पत्थर से तोड़ा जाता है। ये तैयार फल है जो दरख्त पर ही तैयार हो गया है, पक गया है। इसे इस हालत में आने के लिए तकरीबन 11 महीने लगते हैं। बेलगरी के दरख्त की माहियत जानते हैं। बेलगरी का दरख्त तकरीबन 13 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। बड़ी बड़ी शाखें हल्की झुकी हुई हालत में चारों तरफ निकली होती हैं। ये आपको नजर आ रही हैं। हर हिस्से में जहां जहां बेल फल लगा हुआ है वो हिस्सा लटक रहा है क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा होता है। ये भी आप देख रहे हैं, हरे हरे फल हैं और डालियां लटकी हुई हैं बोझ की वजह से। पत्ते, इसके पत्ते जो हैं आम पत्तों की तरह बैजुई शक्ल के होते हैं लेकिन सिरे पर नोकदार होते हैं। ये आप देख रहे हैं, पत्ता जो है सिरे पर नोकदार है। अक्सर 3-3 पत्तियों के सेट में लगते हैं। यहाँ आप भी देख रहे हैं ये एक सेट है, ये एक पत्ता, दूसरा पत्ता और ये तीसरा पत्ता। हर जगह पर आमतौर से 3-3 पत्तियों का सेट लगता है। किनारे बिल्कुल हमवार होते हैं। नए पत्ते नर्म हल्के स्याही माइल सब्ज और बड़े पत्ते गहरे सब्ज होते हैं। फूल 1.5 से 2 सेंटीमीटर के सब्ज या जर्द हल्के खुशबूदार फूल लगते हैं। 4 से 5 पंखड़ियां पाई जाती हैं और फूल जो है पत्तियों के दरमियान ही खिलते हैं। बारआवर फूलों की पंखड़ियां झड़ जाती हैं। जिन फूलों की बारआवरी नहीं हुई है उनकी पत्तियां अब खत्म हो गई हैं। जो फूल फल में तब्दील नहीं हो पाते वो मुरझाकर गिर जाते हैं। बेलगरी का फूल आपको करीब से नजर आ रहा है। पूरे फूल के दरमियान में आप देखेंगे जब बारावरी हो जाती है तो बिल्कुल दरमियान में एक छोटा सा फल बनना शुरू होता है। यहाँ भी आप देखेंगे ये पूरा फूल था, पत्तियां थी, अब ये झड़ जाएंगी और दरमियान में यहाँ पर फल बनना शुरू होगा। ये है ताजा ताजा फल जो बिल्कुल शुरू की हालत में है, सब्ज होता है, नर्म होता है। ऐसे जितने फूल बारावर हो गए वो सब छोटे छोटे अंजीर की शक्ल में आपको नजर आ रहे हैं। इसकी छाल, बेलगरी की छाल जो है हल्की भूरी या सुरमई, कभी हमवार बिल्कुल मुसत्ते होती है और कभी बारीक बारीक फटी हुई हालत में होती है। दराजें पाई जाती हैं। ये आपको फटी हुई हालत में उसका तना नजर आ रहा है। इसकी छोटी बड़ी शाखों पर मोटे मोटे सख्त और मजबूत कांटे पाए जाते हैं। ये आप उसकी पत्ती देख रहे हैं और यहाँ पर आपको कांटे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दूसरा कांटा नजर आ रहा है। जितनी बड़ी डाली होगी आप देखेंगे कि उतने बड़े बड़े कांटे बनते जाते हैं। ये भी आप उसकी डाली देख रहे हैं और यहाँ पर तो आप पूरी तरह हर शाख पर उसकी बड़े बड़े कांटे नजर आ रहे हैं। इस्तेमाल होने वाले अज्जा में बेलगरी का गूदा इस्तेमाल होता है। जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये बीच का दरमियानी हिस्सा गूदा है और इसमें आपको तुख्म भी नजर आ रहे हैं। इसका नबाताती खाका, ये 3-3 के सेट में पत्तियां लगी हुई हैं, फूल खिले हुए हैं और जो फूल
12 آور ہو جاتے ہیں وہ پھل میں تبدیل ہونے لگتے ہیں. یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بنا ہوا پھل ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کو بیچ میں سے کراس کر دیا جائے تو کس طرح سے 15 سے 20 کھانے بنے ہوتے ہیں اور ہر ایک میں بیج نظر آتے ہیں. پیداواری علاقے اور کاشت بیلگری انڈو پاک اور ان مشرقی ممالک میں قدرتاً اگتا ہے. یہاں آپ یہ نقشہ دیکھ سکتے ہیں. انڈیا پاکستان میں تو یہ بھرپور انداز میں ہے اور صرف اس کے مشرق میں جتنے ممالک ہیں یہیں پر یہ پیداواری علاقہ پایا جاتا ہے. اصل میں انڈو پاک کا پھل ہے. دنیا میں جن ممالک میں یہ پایا جا رہا ہے بنگلہ دیش، نیپال، انڈمان، سری لنکا، میانمار، کمبوڈیا اور ویتنام